Hello everyone, welcome to my channel Numeric Marathon. In the previous video we have discussed what is functions and we have also discussed in detail various real valued functions and their graphs. So today we are going to begin with examples and we'll be covering few questions in the exercise 2.3 and miscellaneous examples as well. So we have example 16. It says let fx is equal to x square and gx is equal to 2x plus 1. These are two real valued functions. Find f plus g of x, f minus g of x, f g of x, f upon g of x. Find it's very simple. It is not as complicated as it seems. So first is f plus g of x. That means we are simply supposed to add the two functions that is given to us. So x square plus 2x plus 1. It cannot be further solved. We leave it as it is. Then we have f minus g of x. That means we are going to subtract the two functions given to us. So it is x square minus 2x plus 1. This becomes x square minus 2x minus 1. Similarly, it is f g of x, that is f dot g of x, means multiplication of two functions. So x square into 2x plus 1. So this becomes 2x cube plus x square. Simple. Next we have f by g of x. It becomes x square upon 2x plus 1. Now this 2x plus 1 should not be equal to 0. 2x plus 1 should not be equal to 0. So उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? Should not be equal to 0. So this implies 2x plus 2x is equal not equal to minus 1, right? अगर हमें 2x plus 1 not equal to 0 चाहिए, that means if I shift it here, if I shift minus 1 to the RHS, that means 2x is not equal to minus 1. This implies x is not equal to minus 1 upon 2. So हम इस डिनोमिनेटर में हमारा जो एच एक्स अपॉन जी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में जो हमारा फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू क्या है? माइनस 1 अपॉन 2 नहीं होनी चाहिए. Fine. So this is our f upon g of x. That means whenever we get a quotient function like this is called a quotient function. Quotient functions, because we are basically dividing two functions given to us. So again in quotient functions we are supposed to mention on which points of x is the function defined. So function is defined on all x belong to R except x is equal to minus 1 upon 2. So इसकी डोमेन क्या हो जाएगी हमारी फंक्शन की, क्वोशंट फंक्शन की? यहां से डोमेन क्या आ जाएगी? r minus 1 upon 2. That means x can be any number from the set of real numbers except minus 1 upon 2. Now we have the next example. It says fx is equal to root x and gx is equal to x. So we are again supposed to find out these values. So f plus g of x, f plus g of x. That means we are simply supposed to add fx and gx. So this becomes root x plus x. Now f minus g of x, that means we are supposed to subtract these functions, that is root x minus x. Then we have f dot g of x, that means multiplication of two functions. So this will become root x dot x, that means x to the power 1 by 2 dot x to the power 1. So when we add these powers, we get x to the power 3 by 2. So f dot g of x हमारे पास क्या निकल कर आया? x to the power 3 by 2. Similarly we have fx upon gx. इसको हम क्या लिख सकते हैं? f by g of x. ठीक है, इसका मतलब again we have to divide both the functions given to us, that is root x upon x, that means x to the power 1 by 2 upon x. So हम जब डिवाइड करते हैं और हमारा बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है. दैट मीन्स 1 by 2 minus 1, x to the power 1 by 2 minus 1. तो ये क्या निकल कर आ जाएगा हमारा? x to the power minus 1 by 2. So f upon g of x हमारा क्या बन जाएगा? x to the power minus 1 by 2. So हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 upon under root x. अब under root x मतलब x should not be equal to 0, राइट? क्योंकि अगर x 0 हो गया तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इट विल गो अनडिफाइंड. 1 अपॉन 0 विल गो अनडिफाइंड, इट विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी. सो हम डोमेन क्या लिख सकते हैं इस फंक्शन का? इस क्वोशंट फंक्शन का डोमेन क्या बन जाएगा हमारा? सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस 0. Now it is very much understood that these are real valued functions, means
ये जो रेंज और जो डोमेन निकल कर आएंगे या तो रियल नंबर्स या उनके सबसेट होंगे. Fine. So these basically, what are these? F plus g of x, f minus g of x. These are basically algebra on these real valued functions. Fine. So now we are beginning with exercise 2.3. Question number 1 says, which of the following relations are functions? Give reasons. If it is a function, determine its domain and range. So the first relation that is given to us, it says the ordered pairs are 2 comma 1, 5 comma 1, 8 comma 1, 11 comma 1, 14 comma 1, 17 comma 1. So what are my first elements? 2, 5, 8, 11, 14 and 17. फाइन. अब आप ये देखिए कि मेरे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है. दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर विच आर एट द फर्स्ट प्लेस, उनकी इमेज क्या निकल कर आ रही है? यूनिक निकल कर आ रही है. 2 की इमेज सिर्फ 1 है, 5 की इमेज सिर्फ 1 है, सिमिलरली 8 की इमेज सिर्फ 1 है. हमें 8 के साथ और कुछ पेयर अप करके नहीं लिखा हुआ है फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर, राइट. सो ऑब्वियसली रिलेशन 1 इट इज अ फंक्शन. It is a function. Fine. Why it is a function? The reason will be because because elements in the domain is obviously the set of the first elements of the ordered pair. Elements in the domain have unique image. अब वो कह रहे हैं हमें इसका डोमेन और रेंज भी लिखना है. सो डोमेन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? डोमेन हमें पता है. डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स. तो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या है? 2, 5, 8, 11, 14, 17. ये मेरा बन गया सेट ऑफ डोमेन. रेंज क्या हो जाएगा मेरा? ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स के सेट को रेंज कहते हैं, मतलब सेट ऑफ इमेजेस. सो इमेज क्या क्या निकल कर आ रही है? 1. सबकी इमेज 1 निकल कर आ रही है. दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा? रेंज क्या बन जाएगा हमारा? 1. Similarly, we have the second relation given to us. It is 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7. Again, in the second relation that is given to us, ordered pair का first element repeat नहीं हो रहा है. That means 2 की image सिर्फ 1 है, 4 की image सिर्फ 2 है, 4 की और कोई image नहीं है यहाँ पे. That means it is a function. Reason आप फिर से वही लिख देंगे जो आपने फर्स्ट में लिखा है, that elements of the domain have unique image. It is a function. So इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा? अगेन डोमेन विल बी द सेट ऑफ प्री इमेज, मतलब ऑर्डर्ड पेयर के पहले वाले एलिमेंट्स का सेट. सो ये कितना हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ये मेरा बन जाएगा डोमेन सेट. रेंज क्या हो जाएगा मेरा? सेट ऑफ इमेजेस, मतलब सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This is my set of range set, matlab set of all the images. Now if I see the third relation that is given to us, now it says 1, 3, 1, 5, 2, 5. That means image of 1 is 3 and 5. That means image is not unique. Image of 1 is not unique. Therefore it is not a function. It is not a function. ठीक है. Now let's come to question number 2. It says we have to find the domain and the range of the functions given to us. So the very first function that is given to us is f of x is equal to minus mod x. हमने पिछली वीडियो में नॉर्मल mod x मतलब पॉजिटिव mod x फंक्शन की डोमेन रेंज निकालना सीखा था. सो पहले हम वो लिख देते हैं नॉर्मल हमारा. अगर हमें फॉर एग्जांपल g of x अगर मेरा है पॉजिटिव mod x, पॉजिटिव mod x को हम लोग डिसोसिएट करके कैसे लिखते हैं? इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो मेरा क्या निकल कर आता है? x निकल कर आता है, राइट. और माइनस x कब होता है? जब x इज लेस देन 0. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है? इसके आगे माइनस लगा हुआ है. दैट मीन्स इफ आई से दैट f of x इज इक्वल टू माइनस मॉड x, दैट मीन्स दिस विल बिकम माइनस x और ये क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ माइनस x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0. सो ये क्या बन गया? इज इक्वल टू माइनस x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड प्लस x व्हेन x इज लेस देन 0. सो यहां से मेरे x की क्या वैल्यूज निकल कर आ रही हैं?
इट इज फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड 0 टू नेगेटिव इन्फिनिटी। तो रेंज क्या निकल गई मेरी? रेंज इज इक्वल टू अगेन सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी टू 0, राइट, एंड 0 टू union, we can say union 0 to negative infinity, sorry 0 to negative infinity and 0 to positive infinity। इसको पूरा हम क्या लिख सकते हैं? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, राइट, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये मेरा बन गया रेंज सेट। ठीक है, ऑब्वियसली डोमेन क्या हो जाएगा मेरा? अब ये जो मेरा फंक्शन है मॉड माइनस ऑफ मॉड एक्स, इसमें हम रियल नंबर की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं और यहाँ लिखा भी इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, right? It is written here that it is a real valued function. So again, domain set will be set of all the real numbers. Fine. Now I'm solving second function over here. It is second function is f of x is equal to under root 9 minus x square. Fine. पहले तो हमें ये देखना है कि 9 minus x square define कहाँ कहाँ है. So if I put it equal to 0, 9 minus x square is equal to 0. Fine. So ये क्या बन जाएगा? 9 is equal to x square. So if I'm taking the under root, I'll get x is equal to plus minus 3. Why plus minus 3? Because if I minus 3 का square करूंगी तो भी 9 आएगा, 3 का square करूंगी then also I'll get 9. So value for x can be both 3 to minus 3. ठीक है, x की वैल्यूज मेरी क्या निकल कर आ गई यहाँ से? x belongs to the set of minus 3 to plus 3. अगर हम ये नहीं भी करते हैं, अगर हम नॉर्मली लेके देखते हैं, 3 से कोई बड़ा नंबर डाल के देखते हैं यहाँ पे, इफ आई टेक x इज इक्वल टू 4, इफ x इज इक्वल टू 4, ठीक है, सो अंडर रूट 9 माइनस 4 स्क्वायर विल बी अंडर रूट 9 माइनस 16 विच इज इक्वल टू अंडर रूट, आई थिंक इट विल बी माइनस 7। अब माइनस 7 अंडर रूट में ना तो हमारा रियल नंबर होता है, वाई? बिकॉज दिस इज नीदर रैशनल नॉट इररेशनल। ये क्या नंबर्स होते हैं? हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, अंडर रूट में अगर हमारे पास कभी भी कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव, दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो वी आर गोइंग टू स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एंटायरली डिफरेंट चैप्टर। अभी हम, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं होते हैं एंड इट इज सेड दैट इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। दैट मीन्स हम लोग माइनस 3 से छोटा, आई मीन माइनस 3 से लेफ्ट हैंड साइड और 3 से राइट हैंड साइड में, मतलब 3 से इस तरफ, माइनस 3 से इस तरफ, और कोई नंबर नहीं ले सकते इनके अलावा। x मेरा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? माइनस 3 से प्लस 3 के बीच में ही बिलोंग करेगा। तो ये मेरा क्या निकल कर आ गया? डोमेन। डोमेन क्या बन जाएगी मेरी? डोमेन इज इक्वल टू माइनस 3 टू प्लस 3। दैट मीन्स ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन माइनस 3 टू प्लस 3। नाउ रेंज, रेंज क्या निकल कर आएगी? ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पर 3 डालती हूँ, 3 से बड़ा नंबर तो हम ले नहीं रहे, अगर मैं यहाँ 3 डालती हूँ तो मेरी रेंज क्या निकल कर आएगी? इफ x इज इक्वल टू 3, so if I'm putting x is equal to 3, ये मेरा क्या बन जाएगा? 9 minus 3 square which is equal to 0. 9 minus 9 will give you 0 and under root 0 will be 0. So उससे छोटी कोई वैल्यू अगर हम डाल के देखेंगे तो क्या आएगा हमारा? 9 की जगह अगर मैं 2 डालती हूँ तो क्या आएगा? So if I am substituting x is equal to 2, मेरा क्या बन जाएगा? अंडर रूट 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 5। सो ये भी हमारी कोई डेसिमल में वैल्यू आएगी, बट आएगी किसके बीच में? 0 से 3 के बीच में ही आएगी, राइट? किसके बीच में आएगी? 0 से 3 के बीच में ही आएगी ये वैल्यू। ठीक है, सो रेंज मेरी क्या निकल कर आ गई? सेट फ्रॉम 0 टू 3, राइट? क्या निकल कर आ गया मेरा? सेट ऑफ 0 टू 3, मतलब ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 टू 3, ये मेरा बन गया रेंज। Now let's have question number 3. It says a function f is defined by fx is equal to 2x minus 5. So fx is equal to 2x minus 5. It says write down the values of f of 0. F of 0 means x is equal to 0 will give you f of 0. So putting x is equal to 0, what do we have? 2 into 0 minus 5. So f of 0 will be minus 5. Similarly, second part we have f of 7. F of 7 means this implies x is equal to 7. So substituting x is equal to 7 in 2x minus 5. So f of 7 will be x की जगह हम क्या डाल देंगे? 7 डाल देंगे x की जगह. This will become 2 into 7 minus 14. Sorry, 2 into 7 minus 5. 2 into 7 minus 5. 14 minus 5 will give you 9. So f of 7 is equal to
9. Similarly, we have f of minus 3. F of minus 3. That means x is equal to minus 3. So substituting x is equal to minus 3 in 2x minus 5. So f of minus 3 will be 2 into minus 3 plus 5. So 2 into minus 3 will give you minus 6 plus 5 minus 1. So f of minus 3 will be minus 1. Very easy question. You are just supposed to substitute the value of whatever it is given in the bracket to you. You will substitute that value in place of x in the function and you will evaluate the value. Okay. So now we have question number 4. It says the function T which maps the temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by this rule given to us. So it is written T of C is equal to 9C upon 5 plus 32. So this is the formula of conversion from Celsius to degree Fahrenheit. Okay. ये जो हमारा निकल कर आएगा ये क्या निकल कर आएगा? Fahrenheit निकल कर आएगा. ठीक है. तो अब now they are asking find out T of 0. T of 0. That means we have to substitute 0 in place of C. Right? We have to substitute 0 in place of C. So putting C is equal to 0. This means what will I get? T of 0 is equal to 9.0 upon 5 plus 32. That means this will be cancelled because this is 9 into 0 will become 0, 0 upon 5 again 0 plus 32, this I'll get 32. Right, so T of 0 will be 32. Okay, next part, it says we have to evaluate T of 28. T of 28, that means C is equal to 28, right? T of 28 means C is equal to 28. That means 9 into 28 upon 5 plus 32. 9 into 28 upon 5 plus 32. So now taking the LCM and all, what will we have? We'll have 252 plus 160 upon 5. ये कितना बन जाएगा हमारा टोटल? It will be 412 upon 5. So T of 28 will be 412 upon 5. You can further resolve it to decimals also. Fine. Now part 3. Part 3 it says T is T of minus 10. That means we have to substitute C is equal to minus 10. Right? So what do we have? 9 into minus 10 upon 5 plus 32. So 5 and minus 10 gets cancelled. We get 2 here. So 9 to the 18 plus 32. 18 plus 32, what do we have? Also this is negative. Minus 2 into 9, this will be minus 18. Now minus 18 plus 32, we'll get 14. So T of minus 10 is equal to 14. Now it says we have to find the value for C and T of C is given to us. That means T of C is given to us as 212. We are supposed to find out the value for C. So हम इसको किसके इक्वल रख देंगे? 9.C upon 5 plus 32. Fine. 32 को ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, ये कितना हो जाएगा? 212 minus 32 is equal to 9.C upon 5. माइनस करके मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से? When I'll subtract, I'll have 180. 212 minus 32 is 180. Right? So 180 is equal to 9.C upon 5. C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 into 5 upon 9 is equal to C. कितना आ जाएगा सॉल्व करके मेरे पास? C is equal to 100. So when T is equal to 212, C is equal to 100. This is our question number 4. Now we have question number 5. It says find the range of each of the following functions. First function is given to you. First function is given to us as f of x is equal to 2 minus 3x, where x belongs to R. That means domain is given to you that x is belonging to R. This is what? This is domain. X belongs to R. X greater than 0. हमें क्या निकालना है कि fx क्या क्या वैल्यू ले सकता है? हमें क्या निकालना है कि fx क्या क्या वैल्यू ले सकता है? fx क्या है हमारा? 2 minus 3x. हमें ये निकालना है कि 2 minus 3x जो है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है. ठीक है. सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? given that x is greater than 0. Fine. So if I'm multiplying by 3 on both sides, this will become 3x greater than 0.
0 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगी 0 ही रहेगा, तो 3x ग्रेटर देन 0. फाइन. So if 3x is greater than 0, then can I say minus 3x will be less than 0? Obviously माइनस, अगर मैंने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 0 से कम बन जाएगा, 0 से लेस देन हो जाएगा. Obviously something multiplied by minus sign, मतलब वैल्यू 0 से कम हो गई. So minus 3x is less than 0. Now what I am doing? I am adding 2 on both sides. Adding 2 on both sides. So ये क्या बन जाएगा मेरा, -3x plus 2 is less than 0 plus 2. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ अब, 2 minus 3x लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरा फंक्शन ही इस फॉर्म में दे रखा है मुझे, तो ये लिखूंगी तो थोड़ा सा हमें लगेगा कि आंसर आ रहा है ना. बात एक ही है, आप -3x plus 2 भी लिखा छोड़ सकते हैं. ये कितना हो जाएगा, 2. इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा क्या निकल कर आ गया, fx, f of x. So f of x की वैल्यू कहां से कहां तक की जा रही है, f of x की जो वैल्यू है वो 2 से कम है. f of x is less than 2. That means f of x की वैल्यू कहां से बिलोंग करेगी, 2 से कम वैल्यू जाएगी, मतलब 2 से सारी की सारी कम वैल्यूज. सो मैं लिख सकती हूँ कि -∞ to 2. 2 से कम वैल्यूज मतलब मूविंग ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड, 2 1 0 एंड ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन देम, -1 -2, इन सब के बीच के रियल नंबर्स आ जाएंगे, तो -∞ to 2 तक आ जाएगा. सो ये बन गया है रेंज. फाइन. नेक्स्ट फंक्शन इज गिवन टू अस एज x square plus 2 f of x is equal to x square plus 2. Let me write it clearly. Part 2, f of x is equal to x square plus 2. Fine. And x belongs to R. x is a real number. हमें फिर से डोमेन दे रखा है, ठीक है. उसके बाद हमें क्या कह रहा है वो, कि रेंज निकालनी है फिर से, मतलब हमें वो निकालनी है कि fx क्या क्या वैल्यू ले सकता है. सो क्या मैं ये लिख सकती हूँ दैट एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, कि मेरा जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है. अगर मैं 0 का स्क्वायर करूंगी तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दैट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये मैं कैसे लिख सकती हूँ, बिकॉज आई नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव रियल नंबर. ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. Now I am adding 2 on both sides. ये मेरा क्या बन गया, x square plus 2 and 0 plus 2. फाइन. सो ये मेरे पास क्या आ गया, ये तो मेरा पूरा fx बन गया, और ये कितना आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2. मतलब fx कौन सी वैल्यूज ले सकता है, fx कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. दैट मीन्स fx की वैल्यू कौन से सेट से बिलोंग करेंगी, 2 to infinity, where 2 is included because we have a equal to also. हमारे पास इनइक्वालिटी के साथ साथ इक्वल टू भी है, तो इंटरवल हम कैसा बनाएंगे जिसमें हमारा 2 इंक्लूड हो, इसलिए यहाँ लगा स्क्वायर ब्रैकेट. तो रेंज सेट क्या बन जाएगा हमारा, 2 to infinity. फाइन. सो इस तरह से हम लोग रेंज निकाल सकते हैं, जब हमें दे रखा, जैसे यहाँ पर दे रखा है x इज ग्रेटर देन 0, तो हमने एक ऐसा सेटअप बना के एक fx की वैल्यू लेकर आए कि fx हमारी कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है. सिमिलरली यहाँ हमें क्या गिवन है, फंक्शन में x स्क्वायर यूज कर रहे हैं हम लोग, सेकंड फंक्शन में हम लोग x स्क्वायर यूज कर रहे हैं. हमें ये पता है कि अगर x रियल नंबर है, दैट मीन्स x स्क्वायर जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. सो ये वाला नोशन लेके आई हैव मूव फर्दर, मैंने 2 ऐड करा दोनों साइड. सो सिमिलरली आई गॉट fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ठीक है, सो यहां से मुझे इन दोनों का रेंज मिल गया. थर्ड पार्ट क्या है मेरा, f of x is equal to x. अब now this is what function, identity function. This is identity function. Why? जो भी मैं x की वैल्यू डाल रही हूँ मेरी इमेज वही निकल कर आ रही है. जैसे f of 1 will be equal to 1, f of 2 equal to 2, f of minus 1.1 equal to 1.1. तो जो भी मैं x डाल रही हूँ इमेज भी वही निकल कर आ रही है. तो अगर x belongs to real numbers है, it is written x belongs to real numbers, that means f of x will also belong to real number. कि अगर मैंने x रियल नंबर डाला है, निकल के भी मेरा x आया, तो x भी रियल नंबर ही होगा. ठीक है, तो अगर x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स f of x will also belong to real number. दैट मीन्स रेंज सेट मेरा क्या बन जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स. फाइन. This completes your exercise 2.2. Now let's begin with miscellaneous examples.
So now we have example 18. It says let R be the set of real numbers. It is given that R is the set of real numbers with us and a function is defined from R to R. That means this R is the domain. हमारा डोमेन क्या है? सिंपल सेट ऑफ रियल नंबर्स. और एफ एक्स कैसे डिफाइन कर रखा है? x plus 10. So y is equal to fx and it is given as x plus 10. तो ये x plus 10 मेरा क्या है? मैं इसे क्या कह सकती हूँ? लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकती हूँ मैं इसको, लीनियर फंक्शन, राइट? So this is linear function. लीनियर फंक्शन का जनरल फॉर्म क्या होता है? लीनियर फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म fx is equal to ax plus b, where a and b are constant and a comma b belong to set of real numbers. ठीक है. सो अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो मैं पहले तो सिंपल इसको कैसे लिख सकती हूँ? y is equal to x plus 10. ठीक है. सो लेट्स पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x and y which is equal to fx. ठीक है. सो इफ my x is equal to 0, अगर मेरा x 0 है तो y कितना आ जाएगा? 10, राइट? अगर मेरा x 0 है तो y 10 आ जाएगा. अगर मैं y 0 लेती हूँ तो x कितना आ जाएगा? अगर मैं y 0 लेती हूँ तो x कितना बन जाएगा मेरा? x will be minus 10. चेक कर लीजिए. इफ y is equal to 0, so यहाँ पर I can substitute 0 is equal to x plus 10. When I shift 10 that side, this will become x is equal to minus 10. So इसलिए मेरा x is equal to कितना निकल कर आ गया? minus 10. फाइन. हम और भी वैल्यूज डाल के देख लेते हैं. इफ x is equal to 1, y will become 11. सिंपल. इफ x is equal to minus 1, y will become, x में हम minus 1 अगर डाल देते हैं तो ये कितना बन जाएगा? minus 1 plus 10. That means y is equal to 9. y कितना आ जाएगा मेरा? 9. ठीक है. सो ऐसे करके मैं कुछ पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ फंक्शन की. और मेरा ग्राफ कैसा दिखेगा? सो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, राइट? आई हैव, दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस. ठीक है. सो अब मुझे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ था? 0,10 दिया हुआ था. से आई मीन हमने निकाला है 0,10. सो 0,10 आई हैव मार्क्ड हियर. देन आई हैव मार्क्ड दिस minus 10,0. ठीक है. इसके बीच के अगर मैं ये लाइन ज्वाइन कर देती हूँ तो ये मेरा क्या फंक्शन बन जाएगा? y is equal to x plus 10. This is the graph for y is equal to x plus 10. चेक भी कर सकते हैं. अगर मैं x को -4 रखती हूँ, ठीक है, तो मेरा y क्या निकल कर आएगा? 6. चेक कर लीजिए. If x is equal to -4, y is equal to -4 plus 10, y is equal to 6. So -4 and 6. So यहाँ से मेरा क्या निकल कर आ गया? -4, 6. ठीक है. सो एक और चीज याद रखनी है, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. फाइन. अभी और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे अगर मैं कहूँ स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस वीडियो दैट स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ हमें कैसा मिलता है? पैराबोला मिलता है, राइट? सो ग्राफ ऑफ स्क्वायर फंक्शन इज ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर और स्क्वायर फंक्शन. स्क्वायर फंक्शन इज अ पैराबोला. ठीक है. ये होता है हमारा ग्राफ एक्स स्क्वायर के लिए. हमारा ग्राफ कैसा निकल कर आता है एक्स स्क्वायर के लिए? पैराबोला के फॉर्म में. सिमिलरली लीनियर फंक्शन के लिए कैसा निकल कर आता है? स्ट्रेट लाइन निकल कर आता है लीनियर फंक्शन के लिए. फाइन. सो दिस इज आवर एग्जांपल 18. So now we have example 19. It says let R be a relation from Q to Q defined by A comma B, right? Defined by A comma B. These are my ordered pairs. So A comma B कहाँ से belong कर रहा है? Q से. Q कौन सा set होता है अब हमारा? So Q is the set of rational numbers. Fine. हमें क्या दे रखा है? एक relation है from Q to Q. That means डोमेन जो है Q relation का, जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे रिलेशन में, वो कहाँ से होंगे? These are the set of rational number. Rational numbers होंगे वो. Rational numbers. Fine. Q is the set of rational numbers. अब रिलेशन किस हिसाब से डिफाइन है? हमें रिलेशन इज इक्वल टू क्या दे रखा है? ऑर्डर्ड पेयर कैसे होंगे? A, B और A, B बिलोंग टू Q. मतलब दोनों ही जो A, B है वो बिलोंग टू के किस सेट में करेंगे? Q में. दोनों ही रैशनल होने चाहिए. एंड दोनों का जो डिफरेंस निकल कर आएगा
दोनों एलिमेंट्स का, ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स का जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। भाई ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। शो क्या करना है, अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या शो करना है, ए कॉमा ए बिलोंग टू आर और नॉट। हमें क्या दिखाना है कि क्या ए कॉमा ए आर में बिलोंग करेगा। सो इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, अगर ये ए कॉमा ए बिलोंग करता है आर में, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज ए माइनस ए कितना होना चाहिए, z होना चाहिए। ए माइनस ए मेरा आ कितना रहा है, जीरो। जीरो किस में बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। सो दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग टू द सेट ऑफ रिलेशंस दैट इज गिवन टू अस, जिसमें कि दोनों ही एलिमेंट्स के डिफरेंस का कितना आ रहा है, हमारा इंटीजर निकल कर आ रहा है। ठीक है, सो अगर ऐसा एक रिलेशन मेरे पास आता है जिसमें कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट सेम होता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम है, इसका मतलब क्या है, ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, राइट। सो ये कौन सा मेरा रिलेशन होता है, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड, so this type of relation is called reflexive relation. This type of relation is called reflexive relation. Okay, when an element of the ordered pair is related to itself, मतलब first element of the ordered pair is related to itself, ठीक है, तो ये मेरा कैसा रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सो अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, a comma b implies a comma b belongs to r, a comma b belongs to r implies b comma a belongs to r। तो अगर मेरे पास if a comma b belongs to r, this implies a minus b will belong to z। a minus b जो मेरा डिफरेंस आएगा वो एक इंटीजर होगा, राइट। सो इफ b comma a belong to r, b, अच्छा ये तो हमें दे ही रखा है तो यहाँ हम if नहीं लिखेंगे, ये तो हमें दे ही रखा है कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r। चेक हमें किसके लिए करना है, b कॉमा a के लिए। ठीक है, तो अगर a माइनस बी बिलोंग टू z है तो b माइनस a कितना होगा, वो भी एक इंटीजर निकल कर आएगा, चेक कर लेते हैं। अगर a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 2 है, 3 माइनस 2 करूंगी तो 1 आएगा, 1 इज एन इंटीजर। और 2 माइनस 3 करूंगी अगर मैं, तो -1 आएगा विच इज ऑल्सो एन इंटीजर। दैट मीन्स ऑब्वियसली हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो इंटीजर होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आर क्लोज्ड, दे फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब जो सम आता है इंटीजर्स का और डिफरेंस आता है, ठीक है, वो ऑब्वियसली क्या होते हैं, इंटीजर ही निकल कर आते हैं। सो ऑब्वियसली बी कॉमा ए जो होगा वो क्या करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। ठीक है, वाई, क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि b माइनस ए हमारा इंटीजर निकल कर आ रहा है, दैट मीन्स b कॉमा ए विल बी एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ r। तो अगर हमारे पास एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा a बिलोंग्स टू r, ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। फाइन, लेट्स कम टू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, a comma b belongs to r and b comma c belongs to r। चेक किसके लिए करना है, implies that a comma c belongs to r। सो पहला वाला सेट लेके चलते हैं, पहला ऑर्डर पेयर लेके चलते हैं। a comma b belongs to r implies a minus b is an integer। ठीक है, अगर b comma c भी हमारा r में है, that means b minus c is also an integer। तो अगर मैं लेती हूँ if a comma c belongs to r, तो अगर a माइनस बी इज एन इंटीजर, b माइनस सी इज एन इंटीजर, तो मैं अगर किसी भी दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, फाइन, a कॉमा c को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो अगर a माइनस बी मैंने करा वो इंटीजर निकल कर आ रहा है, b माइनस सी मैंने करा वो भी मेरा इंटीजर निकल कर आ रहा है, तो a माइनस सी मेरा क्या निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, इट विल ऑल्सो बिलोंग टू z। और ये हम कैसे शो कर सकते हैं, आई एम डूइंग इट हियर। फाइन, सो हमारे पास क्या गिवन है, a कॉमा सी हमें चेक करना है कि क्या वो r में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो मैं a कॉमा सी को क्या लिख सकती हूँ, a माइनस सी को, a कॉमा सी मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a माइनस सी को। a माइनस सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी, हमारे को a माइनस बी का रिलेशन पता है ना, हमें रिलेशन में क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। ठीक है, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी लिख सकती हूँ। बेसिकली मैंने क्या करा, b से ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट, b को ऐड भी करा, b को सब्ट्रैक्ट भी करा, तो a माइनस बी मेरा क्या है,
रैशनल सॉरी इंटीजर्स है। b माइनस सी मेरा क्या है, ये भी इंटीजर है। दिस इंप्लाइज a माइनस सी मेरा क्या बन जाएगा, ये भी इंटीजर बन जाएगा, right? So from this particular setup, from this method, or from this result, we can say that a minus c will also be an integer. This implies a comma c belongs to R. हमने क्या करा, a comma c हमें शो करना था कि R में है। That means a comma c मतलब हमें क्या शो करना है, a comma c जो है वो इंटीजर है या नहीं है। That means a minus c दोनों का डिफरेंस जो है वो इंटीजर है या नहीं है। तो मैंने क्या करा, a minus c को मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मैंने b से ऐड भी करा, सब्ट्रैक्ट भी करा। तो मुझे ये पता है a minus b जो है वो इंटीजर है, why? क्योंकि a comma b R में बिलोंग कर रहा है। Then we have b minus c। अब b minus c में ये भी इंटीजर है, why? Because b comma c is also belonging to R। That means if both of them are integers, that means इनको मैं ऐड करूंगी, इंटीजर इंटीजर को ऐड करूंगी तो वो भी मेरा क्या निकल कर आएगा, इंटीजर ही निकल कर आएगा। That means a comma c also belongs to R। तो if अगर मेरे पास एक ऐसा सेटअप होता है where a comma b comma c belongs to R और रिजल्ट क्या निकल कर आता है, a comma c भी R में बिलोंग कर रहा है, तो ऐसी रिलेशंस मेरी कौन सी होती हैं, there is no space left, let me just make a little space। ऐसी रिलेशंस मेरी कौन सी होती हैं, these are transitive relations, these are transitive relations। और ऐसा एक रिलेशन, ये जो हमें R गिवन है, ये रिलेशन जो है ये तीनों ही टाइप्स ऑफ रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, सिमेट्रिक भी सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं यहां से क्या कह सकती हूँ, दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, बट स्टिल आई हैव टोल्ड यू बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। मतलब ये हमारा बेसिकली क्लास 12th में है, बट मैंने क्यों बताया, क्योंकि ऐसे जहां पर भी आप देखोगे कि a कॉमा a बिलोंग्स टू R, अगर a कॉमा b है और b कॉमा a भी R में बिलोंग कर रहा है, और a कॉमा b b कॉमा c है R में, तो a कॉमा c भी R में बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन तीनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है एक टाइम पर, अब जैसे ये जो हमारी R हमें गिवन है, ये तीनों ही एक टाइम पर तीनों ही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइन, इसके बारे में हम क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज लेट f इज इक्वल टू, इट इज अ रिलेशन गिवन टू अस, हमें एक सेट दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है, एंड लेट इट बी अ लीनियर फंक्शन। हमें क्या दे रखा है कि लेट f बी अ लीनियर फंक्शन। तो अगर f लीनियर फंक्शन है मेरा, तो f ऑफ x किस फॉर्म का होगा, f of x will be equal to ax plus b, right? F of x will be equal to ax plus b, ठीक है, where a and b are constants, a and b are constants, ठीक है, a and b हमारे पास क्या है, constants है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमें ये fx फाइंड करना है कि ये fx है क्या। तो fx को मैं क्या लिख सकती हूँ, y लिख सकती हूँ यहाँ से, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में मुझे क्या पता है, ऑर्डर्ड पेयर मेरे कैसे होते हैं, x fx के फॉर्म में होते हैं, या फिर मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, x y के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि y मेरा किसके इक्वल होता है, y मेरा fx के इक्वल होता है। तो fx की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, y लिख सकती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर पेयर मुझे क्या गिवन है, 1, 1, दैट मीन्स 1, 1 इज इक्वल टू 1, 1 किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू 1, मतलब 1, 1 में x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जो मेरी वैल्यूज है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन, right? Substituting x is equal to 1 and y is equal to 1 in equation 1, so मेरा क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 दोबारा लिख लेते हैं, y is equal to ax plus b, y में 1 डाल दो, a into 1 plus b, तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, 1 is equal to a plus b, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन तो चलो हमने इसको मार्क करा है, इसको मैं स्टार मार्क कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर मुझे क्या गिवन है, 2, 3। अब 2, 3 में x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ इक्वेशन 1 में, दिस इज माई इक्वेशन 1, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 3 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस बी, दैट मीन्स 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी,
इसको डबल स्टार मार्क कर देते हैं। तो अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। सो सॉल्विंग स्टार एंड डबल स्टार, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है मेरे पास, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। इफ आई सब्ट्रैक्ट देम देन मेरा b कैंसिल हो जाएगा अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाली लाइन, नीचे वाली इक्वेशन का। सो इफ आई सब्ट्रैक्ट देम, दिस a minus 2a will be minus a, right? This b and minus b gets cancelled. 1 minus 3 will be minus 2. Minus minus getting cancelled, a is equal to 2. अब a is equal to 2 मैं किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ अगर, सो 1 is equal to a plus b है अगर मेरे पास, a is equal to 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करती हूँ मैं, तो 1 is equal to 2 plus b, 1 minus 2 is equal to b, b is equal to minus 1। तो a क्या निकल कर आया 2, b क्या निकल कर आया minus 1। फाइन, सो हमने वैल्यूज निकाल दी। फंक्शन क्या बन जाएगा मेरा अब, सो एफ एक्स कितना था, ए एक्स प्लस बी। ए कितना निकल कर आया मेरा माइनस, सो ए कितना निकल कर आया 2, सो 2x, बी कितना निकल कर आया -1। ये मेरा फंक्शन बन गया है जो हमें चाहिए था। हमसे फंक्शन ही पूछा गया था क्या बनेगा। फंक्शन बनाने के लिए हमें a और b की वैल्यू चाहिए थी। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है वो लीनियर है, तो लीनियर फंक्शन की फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी। सो हमने क्या किया, जो ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं उनको इसमें सब्स्टिट्यूट करा, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा। कैसे सब्स्टिट्यूट करा, एफ एक्स को हमने क्या लिया, y लिया, तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, हमने फर्स्ट टू ऑर्डर्ड पेयर को सब्स्टिट्यूट करा x और y की जगह। आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठा के सब्स्टिट्यूट करते, वैल्यू यही निकल कर आती है आपकी। अगर मैं 0,-1 लेती हूँ, 0,-1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1। ठीक है, सो मैं फिर से y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में इसको अगर पुट करती हूँ, तो y कितना है -1 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स विल बी 0 प्लस बी। यहाँ से b क्या निकल कर आ गया मेरा -1। सो अगेन आई एम गेटिंग b इज इक्वल टू -1। सो मेरे कहने का क्या मतलब है, आप कोई भी ऑर्डर पेयर उठा के वैल्यूज निकाल सकते हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि कौन सी वैल्यू कहाँ डाल रहे हो। फर्स्ट वैल्यू जो होती है ऑर्डर पेयर में वो x होती है, सेकंड वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स होती है। एफ एक्स या फिर उसको y भी लिख सकते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स लेके चलते हैं टू सिंप्लीफाई आवर सॉल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल 20। Now we have question number 21. It says find the domain of the function। हमें function क्या दे रखा है, x square plus 3x plus 5 upon x square minus 5x plus 4। ठीक है, हमें इसका डोमेन निकालना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड दोज वैल्यू ऑफ x जिस पर ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा, कब डिफाइन नहीं होगा ये फंक्शन, जब ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये अगर ये 0 हो जाएगा तब ये फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं होगा। तो मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये पूरी वैल्यू जो है ये नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए इस फंक्शन के एग्जिस्ट करने के लिए। राइट, ये पूरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉन जीरो आनी चाहिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मेरी वैल्यू 0 आ गई इसकी नीचे वाली फंक्शन की, तो ये जो होगा पूरा का पूरा फंक्शन जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी विच इज अनडिफाइंड। सो मुझे क्या चाहिए है कि ये जो मेरी वैल्यू है सेकंड फंक्शन की, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। तो पहले ये देखते हैं कि 0 कहाँ होगी। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले हम ये चेक करें कि 0 कहाँ कहाँ होगी। ठीक है, मतलब कि इक्वल टू 0 करके x की वैल्यूज निकालनी है हमें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, इसको क्या हम लिख सकते हैं, -4x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, यहाँ से x कॉमन निकालो, x माइनस 4। सिमिलरली यहाँ से यहाँ से हम 1 कॉमन निकाल सकते हैं, +1। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से भी क्या निकल कर आएगा, सॉरी -1 कॉमन निकलेगा। -1 कॉमन निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 x माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4 एंड 1। मतलब इन वैल्यूज पर मेरा ये जो फंक्शन है 0 हो रहा है। तो यहाँ से मेरा क्या निकल कर आया, x इज इक्वल टू 4,1। दैट मीन्स एट x इज इक्वल टू 4 एंड एट x इज इक्वल टू 1
मेरा जो एच एक्स है, मेरा जो एच एक्स फंक्शन है वो इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स द डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ एक्स जो होगा मेरा will be all the real numbers except 1, 4. Why except 1, 4? Because 1, 4 पे hx equal to 0 हो रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए, right? Because gx upon hx में if this hx is equal to 0, then this becomes undefined, right? Therefore hx cannot be 0, and for hx cannot be 0 हमें क्या पॉइंट्स डालने पड़ेंगे x में, r minus 1, 4. Fine. So the domain of the function becomes r minus 1, 4. Set 1, 4. इन पॉइंट्स के अलावा रियल नंबर्स के सभी x की वैल्यूज पर ये फंक्शन जो है डिफाइन होगा, इसलिए डोमेन क्या बन जाएगा, r minus 1, 4. So now we have example 22. It says the function is defined by fx and fx is equal to 1 minus x when x is less than 0. Fx is equal to 1 minus x when x is less than 0. Similarly, what do we have? Fx is equal to 1 when x is equal to 0 and fx is equal to x plus 1 when x is greater than 0. ठीक है, सो हम लोग fx की वैल्यू निकालेंगे assuming various values for x. So if I'm taking out f of minus 1 is less than x, that means 1 minus minus 1, this becomes 1 plus 1 which is equal to 2. Similarly we are going to find out f of minus 2, this becomes 1 minus minus 2. हमें minus 2 सिर्फ इस यहाँ पर पुट कर देना है, 1 minus x में x की जगह we'll put minus 2. Okay, so this becomes 1 plus 2, we get 3. Then we can assume f of minus 3, then 1 minus minus 3, it becomes 1 plus 3 which is equal to 4. Then we have f of minus 4 is equal to 1 minus minus 4 which is equal to 1 plus 4 giving us 5. Next we have, if we are putting x is equal to 0, fx क्या बन रहा है हमारा, 1 बन रहा है. When we are putting x is equal to 0, fx क्या निकल कर आ रहा है, 1 निकल कर आ रहा है. तो हमने नेगेटिव नंबर्स पे वैल्यू निकाल ली fx की, 0 पर है हमारे पास, अब पॉजिटिव पे निकालते हैं. So if we are taking f of 1, that means यहाँ पर we'll put x is equal to 1. So 1 plus 1 we'll get 2. Similarly, next हम क्या put कर सकते हैं, f of 2, then 1 plus 2 we get 3. Similarly, f of 3 we'll get 1 plus 3 which is equal to 4. Then we can have f of 4 which is equal to 1 plus 4 equal to 5. ठीक है, सो ये हमने वैल्यूज निकाली है fx की एट वेरियस वैल्यूज ऑफ x. अब हमें ये पता है कि ये किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है. ठीक है, y when x is equal to 1, y when x is equal to 2, y when x is equal to 3, y when x is equal to 4. ठीक है, सिमिलरली ये कितना बन जाएगा हमारा, ये भी y बन जाएगा when x is equal to minus 1. एंड सिमिलरली हमारे ये सारे fx जो होंगे वो भी हम उनकी जगह y लिख सकते हैं. तो fx हमारा जो होता है वो y के इक्वल होता है. ठीक है, अब एक बार इसका ग्राफ देखते हैं हम, ग्राफ कैसा आएगा. तो हमारा ग्राफ कैसा निकल कर आएगा, कुछ ऐसा निकल कर आएगा. अब हम इस ग्राफ को स्टडी करते हैं. y हमारा किसके इक्वल होता है, fx के. दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट में हमारी कौन सी वैल्यूज आएंगी, fx की वैल्यूज आएंगी. सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर मेरा x 0 है तो मेरा y माइनस, तो मेरा y पॉजिटिव 1 है. ठीक है, इफ आई एम टेकिंग f एज माइनस वन से मेरी y की वैल्यू क्या निकल कर आई, 2. सो x इज माइनस 1, y बिकम्स 2. सिमिलरली x is minus 2, y becomes 3. ठीक है, if x is minus 3, y becomes 4. ठीक है, यहाँ पर हम 4 मार्क कर देते हैं. अब पॉजिटिव नंबर्स देखते हैं. अगर x मेरा पॉजिटिव 1 है तो मेरा y कितना निकल कर आया, पॉजिटिव 2. सिमिलरली अगर मेरा x पॉजिटिव 2 है तो मेरा y कितना निकल कर आया, पॉजिटिव 3. सिमिलरली x अगर मेरा पॉजिटिव 3 है तो मेरा y कितना निकल कर आया, पॉजिटिव 4. ठीक है, सो ये हमने जो है एक ग्राफ बना दिया. ठीक है, और ये ग्राफ हमने कैसे बनाया, x और fx की वैल्यूज को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट करके. तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा निकल कर आएगा. ठीक है, ओके. सो इन दिस वीडियो वी हैव बेसिकली completed the questions based on functions of exercise 2.3 and we have also finished the questions of miscellaneous examples. Fine. So I request you to please go through the videos again and again and please clear your concepts, practice each and every question
so that your concepts become clear. पहले हम NCERT ही अच्छे से कर लेते हैं, बाद में we should move on to other books like Arya Sagrawal and R.D. Sharma. Fine, complete your NCERT first and then please jump on to some other books. Okay, thank you.